اعلان کرتا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کافر کافر. دا دلدار خان د مطرې د هغې د خپل کلي سره رابطو کې برای کرم د کلي خلک ورته ولاړ دي، ضروري کار دی ورسره. دلدار خان د مطرې هغې د رابطو کې خپل کور کلي سره. شکریہ. 1974 میں یہ فیصلہ آیا، پاکستان کی آئین کی شک 106 اور 260 کے تحت لکھ دیا گیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. 1974 سے لے کر 1984 تک اس فیصلے کے آنے کے بعد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لٹریچر تقسیم کرتے رہے. 1984 میں آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے پورے ملک پاکستان میں ایک مرتبہ پھر ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بھرپور طریقے سے تحریک چلائی. اس تحریک کے نتیجے میں تعزیرات پاکستان میں 2 دفعات کا اضافہ کر دیا گیا. 298 بی اور 298 سی کا ان 2 دفعات کے تحت لکھ دیا گیا کہ مرزا غلام قادیانی کی ذریت آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے، قادیانی لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتے، قادیانی اذانیں نہیں پڑھ سکتے، قادیانی نمازیں کھلے عام نہیں پڑھ سکتے، قادیانی عیدین نہیں پڑھ سکتے، قادیانی قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتے، قادیانی کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، قادیانی کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے گھر کے اوپر کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، قادیانی اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ کے اوپر بسم اللہ الحمدللہ سبحان اللہ نہیں لکھ سکتے. اگر یہ قادیانی ایسا کریں گے، ان قادیانیوں کے خلاف 298 بی اور سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا. قادیانی آج کے بعد اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے. اگر کوئی قادیانی مسلمان کہے گا، اس قادیانی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، اس کو 3 سال سزا ہوگی. کوئی قادیانی لٹریچر تقسیم کرے، کوئی قادیانی تبلیغ کرے، اس قادیانی کے خلاف 298 بی کے ساتھ مقدمہ درج ہوگا، اس کو 3 سال سزا ہوگی. کوئی قادیانی چلتے رہا کسی مسلمان کو السلام علیکم کہے، اس نے جرم کیا ہے، آئین یہ کہتا ہے اس کو 3 سال سزا ہونی چاہیے. میرے دوستو، قادیانیوں کو آپ کی جماعت اور آپ کے بزرگ نے ایک گلی کے اندر بالکل بند کر کے رکھ دیا. 1984 کے بعد قادیانی سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن لے کر چلے گئے. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ بیٹھا. 5 رکنی بینچ کے سامنے قادیانی پیش ہوئے. 5 جسٹس حضرات بیٹھے، جناب جسٹس عبد القدیر چودھری، جناب جسٹس شفیع الرحمان، جناب جسٹس افضل لون، جناب جسٹس سلیم اختر، جناب جسٹس ولی محمد خان. یہ 5 رکنی بینچ کے سامنے قادیانی پیش ہوئے. سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا، قادیانیوں خیر تو ہے، تم آج سپریم کورٹ میں کیوں آئے ہو؟ قادیانیوں نے کہا، آج سپریم کورٹ میں ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا، کون سا حق آپ ہمارے پاس لینے کے لیے آئے ہیں؟ قادیانیوں نے کہا، پاکستان کی آئین کی 2 شقیں ہیں، 19 اور 20. وہ ہمیں حق دیتی ہیں کہ ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن 298 بی اور سی وہ ہمیں روکتی ہیں کہ تم تبلیغ نہیں کر سکتے. ان 2 شقوں کے تحت آج سپریم کورٹ میں ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा तुम गलत आ गए हो, तुम्हें कोई हक मिलने वाला नहीं है। कादियानियों ने कहा ये रहा पाकिस्तान का आईन और ये रही उसकी दो सिक्के 19 और 20, वो हमें हक देती हैं कि तुम तबलीग कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दो सिक्के 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती हैं जो पाकिस्तान के आईन को तस्लीम करे, पाकिस्तान के आईन को माने, पाकिस्तान के आईन का एहतराम करे। तुमने तो 74 के अंदर जब पार्लियामेंट का फैसला आया था, उस पार्लियामेंट के फैसले के मुतालिक तुमने ये कहा था हम इस पार्लियामेंट के फैसले को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, हम ये फैसला मानने के लिए तैयार नहीं हैं। पार्लियामेंट का फैसला तो आईन हुआ करता है, तुमने आईन के मुतालिक कहा था हम इसको अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। जब तुम लोग पाकिस्तान के आईन को अपनी जूती की नोक पे रखते हो, फिर उस आईन की दोनों सिक्के 19 और 20 तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों, पाकिस्तान के आईन में दी गई जो आपकी हैसियत है, क्या तुम उस हैसियत को तस्लीम करते हो? अगर तस्लीम नहीं करते तो पाकिस्तान के आईन की दोनों सिक्के तुम्हें तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को पाकिस्तान की ये दो आईन की दो सिक्के 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती हैं जिसके तबलीग करते वक्त लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, नक्स अमन का खदशा ना हो, वहां लड़ाई झगड़ा दंगे और फसाद का खतरा ना हो। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद खुदा है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जा गुलाम कादियानी 1,24,000 अंबिया से बेहतर है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे मिर्जे को देखने वाला सहाबी है, मिर्जे की बीवी उम्मुल मोमिनीन है, मिर्जे की बेटी सैयदतुन निसा है, मिर्जे का घराना अहले बैत है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे कि मिर्जा गुलाम कादियानी मदारे निजात है, वहां तो लड़ाई हो जाएगी, वहां झगड़ा हो जाएगा, वहां फसाद हो जाएगा, वहां दंगा हो जाएगा, वहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो जाएगा। जहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो वहां आईन की शेख 19 और 20 तबलीग का कोई हक नहीं देती। नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कादियानियों को कादियानियों, पाकिस्तान के आईन की शेख 19 और 20 तबलीग का हक उसको देती है जिसके तबलीग करते वक्त कम अज कम इखलाकियात बाकी हो, इखलाकियात का ख्याल रखा जाए। जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता वो बदकार औरतों की औलाद है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी को नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे उनके मर्द जंगल के सुअर, उनकी औरतें कुत्तियों से बदतर हैं, जिस वक्त तुम तबलीग करते वक्त ये कहोगे जो मिर्जा कादियानी की नबुव्वत का इनकार करे वो जहन्नमी और दोज़खी है। ये तो इखलाकियात से गिरी हुई बातें हैं, जो इखलाकियात से गिरी हुई बातें करें अपनी तबलीग के अंदर आईन की शेख 19 और 20 उसको तबलीग का कोई हक नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा कादियानियों, फराडी और धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, मुजाहिदीन खत्म नबूवत, नारे तकबीर। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा कादियानियों, फराडी और धोखेबाजों के कोई हकूक नहीं होते। यू आर फ्रॉडुल नॉन मुस्लिम, तुम परले दर्जे के फ्रॉडी और धोखेबाज हो, धोखेबाज हो, तुम
मुसलमानों वाला कलमा पढ़ के मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो, अपने आप को मुसलमान कह के मुसलमानों को धोखा देते हो, मुसलमानों वाला हुलिया बनाकर मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो, मुसलमानों वाला रहन सहन करके मुसलमानों को धोखा देते हो, मुसलमानों वाली पगड़ी पहनकर मुसलमानों के साथ फ्रॉड करते हो। यू आर फ्रॉडली नॉन मुस्लिम, तुम परले दर्जे के फ्रॉडिया और धोखेबाज हो। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को कहा और अपने इस फैसले में लिखा, आज के बाद अगर कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े या अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा लिखे या अपने ऑफिस की टेबल के ऊपर कलमा तय्यबा लेकर लिखे, इस कादियानी के खिलाफ 298C नहीं बल्कि 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इसलिए कि जब ये कादियानी कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, कलमा तय्यबा में लफ्ज मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हैं, मिर्ज़ा कादियानी को मोहम्मद से मुराद लेना ये हुजूर की बहुत बड़ी तौहीन है। हुजूर की तौहीन करने पर जिस दफा के तहत मुकदमा दर्ज होता है वो 295C है, उसकी सजा सजाए मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, अगर आज के बाद कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े, इस कादियानी के खिलाफ 295C के तहत मुकदमा दर्ज हो जिसकी सजा सजाए मौत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर लिखा, हर कादियानी छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, ताजिर है या मुलाजिम, शहर का है या देहात का, पढ़ा लिखा या अनपढ़, शेखुपुरा का या लाहौर का, शब कदर का या पिशावर का, चार सद्दा का या मगोड़ा का, आज हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है। ये कादियानी मेरे नबी के बागी हैं, ये कादियानी मेरे पैगंबर के दुश्मन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, ये कादियानी हर कादियानी सलमान रुश्दी की तरह है। मेरे दोस्तों, आज कादियानी मुसलमानों को धोखा देने के लिए अपने आप को अहमदी कह देते हैं कि हम अहमदी मुसलमान हैं। उम्मत को इस धोखे से बचाने के लिए आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रेट पिटीशन दायर करती है। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया बनाम सरकार के नाम से जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत के अंदर ये केस लगा। कई दिन की बहस और मुबाहसे के बाद जनाब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अपने फैसले के अंदर ये लिखा, आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को कादियानी कहें, अपने आप को मिर्ज़ाई कहें, अपने आप को गलमदी कहें, जो चाहे कहें, लेकिन आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। मेरे शब कदर के मुसलमान, अल्लाह का एहसान और शुक्र है, पार्लियामेंट का फैसला आपके हाथ में है। पाकिस्तान के ताज़ीरात पाकिस्तान का दफात भी आपके हाथ में है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आपके हाथ में है, हाई कोर्ट के फैसले भी आपके हाथ में है, शरीयत कोर्ट के फैसले भी आपके हाथ में है। आइए इन फैसलों के हवाले से या इन फैसलों की मौजूदगी में, इन फैसलों के होते हुए इंशाअल्लाह आज के बाद हम कानूनी तौर पर इंशाअल्लाह कादियानियत के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। नारा तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, जरा शौक से बोलो, ताजदार खत्म नबूवत, काफिर काफिर, आवाज न राजी, मोहब्बत सरा, काफिर काफिर, काफिर काफिर, ताजो तख्त खत्म नबूवत। मुसलमान होने के नाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के नाते और गुलाम होने के नाते मेरे और आपके ऊपर, मेरे और आपके ऊपर मेरे नबी का हक है। उस हक की अदायगी के लिए इंशाअल्लाह हम किरदार अदा करेंगे, हुजूर की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के काम को आगे बढ़ाएंगे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के
صابرین کے کندھے سے کندھا ملا کر قدم سے قدم ملا کر انشاءاللہ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اور حضور کے دشمن اور اپنے نبی کے غالی دشمن اور ملک پاکستان کے غداروں قادیانی اور مرزائیوں کا مقابلہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اونچی آواز سے کہو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.